maximum. So let's start with the story. The story हैगी है the story is sweet talk. बड़े ही मिठियां गल्लां, sweet talk, right? So a fox is scurrying the area for food. Scurrying क्या होंदा है? Exploring, explore करना, right? जांच पड़ताल दे करना, scurrying. So a fox is scurrying the area for food. He sees a crow. ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ crow ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, eating, ਕਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? eating cake, cake ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. while perched ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੈਠਣਾ, right? sit on the branch of a tree ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ branch ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and tree ਦੀ branch ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ crow ਉਹ ਕੇਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਉਹ ਪੀਸ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is a piece of cake. The fox devises a scheme. ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਉਂਤ ਘੜਨੀ, right? So that is devise ਮਤਲਬ ਘੜਨੀ, make a, right? ਇੱਥੇ device ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? to make, right? to make a scheme. ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ scheme ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, devises a scheme to obtain ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, get ਕਰਨਾ. to get the cake by singing praises. cake ਕਿਵੇਂ obtain ਕਰੂਗਾ? singing praises, ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ, right? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਊਗਾ, singing praises of the crow. ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ crow ਦੀ, ਕਾਂ, right? the flattered crow. flattered ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? what is flattered? ਨਹੀਂ, flattered crow ਖੁਸ਼ ਹੁਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਹਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਡੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਵਾਲਾ. ਸੋ ਦ flattered crow ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ crow ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? flattered ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ assume assuming airs. ਇੱਕ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸ ਲਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਕੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ, ਰਾਈਟ? ਐਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਏਅਰਸ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਵਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਓਪਨਸ ਹਰ ਮਾਊਥ ਟੂ ਥੈਂਕ ਦ ਫੋਕਸ. ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਆਪਦਾ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਥੈਂਕਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ opens her mouth to thank the fox and the cake falls out of her mouth. and ਜੋ crow ਦੇ mouth ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ cake ਹੈਗਾ falls out ਮਤਲਬ out, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. the fox picks it up. ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ fox ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਕੇਕ ਨੂੰ, and runs away, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, with it, cake ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ, fooling the crow, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੈ? डोंट fall for sweet words. जो मीठी मीठी बातें करता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गया कुछ तो गड़बड़ है, राइट? इन्निया बंदा अच्छा लगी जाता है. सी come on, every time the person cannot be sweet, he cannot remain sweet every time, right? अपने इमोशंस है गया, you feel angry inside, and that shows when you speak. फिर वर्ड्स आंदे है गया, फिर हर एक टाइम तुसी किवें अच्छे रह सकते हो, कि रह सकते हो? yes or no? yes or no? आरती? no ना, right? नहीं, why I'm asking you specifically, आरती, कपिल देव and you and me. मैं क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ अपन क्लब जो मैं अपने क्लब क्यों बनाया मैं? बिकॉज क्लब ऑफ मैरिड पीपल. यू कैन नॉट बी राइट, यू कैन नॉट बी स्वीट एवरी टाइम, राइट? कई बारी अपन सच भी बोलना चाहिए पैदा है. सो डोंट फॉल फॉर स्वीट वर्ड्स. समझ आया है? यस और नो? ओके. सो द्वारा तुसी जिहड़ी हैगी स्टोरी, मैं एक ना एग्जैक्ट वर्ड देख रहा स्कोर दा, स्कोरिंग.
scouring or scoring. I need to see this. Scoring. Score means yes. वही है with an adverse. A fox is scrubbing the area. Yes, no, इत्थे लभना है. वैसे एक के दा मतलब हुंदा है cleaning the area. लेकिन इत्थे दा मतलब की है exploring the area. एक्सप्लोर कर रहा सी भी कोई चीज़ खाण नूं मिल जे तो एक्सप्लोर क्यों करी जांदा सी फॉर फूड एक बार फिर तुसी ये रीड करो एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अज दे सो प्लीज़ अपने ना पेज दे ऊपर डेट जरूर लिखिया करो हर रोज़ सो दैट तुहानूं पता लगे भी अज मैं क्लास विच की सिक्ख्या है हफ्ते बाद ही पता लगे यार ओले दिन मैं की सिक्ख्या सी राइट हर एक दिन लिखो जो अपने बैच का लास्ट दिन भी होगा ना उदों दिन भी तुसी डेट लिखोगे और थानू रियलाइज़ होगा भी लास्ट दिन भी आप बैच दे कुछ नवा सीख के जावांगे राइट सो डेट जरूर लिखा करो बाकी सारे बैच पर लिखते हैं थोड़े नाल मैं अज डिस्कस किया सो अज तो लिखना शुरू करो ना अ फोक्स इज स्करिंग की होंदा है क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरिंग द एरिया फॉर फूड खाने दे लई भोजन लई लभ रहा सी ओह सारा एरिया छान रहा सी He sees a crow eating cake while perched. Perched की होंदा है बैठना एक तो बैठने लिए होंदा है sit एक दूसरा वर्ड की है बैठने लिए perch ये सेकंड फॉर्म है perched लेकिन perch आप यूज़ करते हैं birds ਲਈ जो वृक्षां ते बैठते हैं birds उन्हां दे ਲਈ शब्द यूज़ करते हैं आप perch इंसान दे ਲਈ होर किसी ਲਈ आप वर्ड यूज़ नहीं करते perch इंसान दे ਲਈ आप वर्ड यूज़ करते हैं sit So while perched on the branch of a tree, the fox devises a scheme. Now what is to devise a scheme? It means to make a plan. Devises a scheme means to make a plan. फिर वो plan बनांदा है to obtain the cake by singing praises of the crow. Right? Singing करदे होए की करदे praises के दी crow दी. Right? And the flattered crow जो बहुत ज़्यादा खुश राइट जो क्रो होंदा है वेरी हैप्पी क्रो जिहड़ा है ओपन्स हर माउथ टू थैंक द फॉक्स भी तुसीं मैनूं इन्नी तारीफ की उन्होंने थैंक करने लई फॉक्स री ओपन हर माउथ एंड द केक फॉल्स आउट एंड फिर जिहड़ा केक है वो नीचे गिर जाता है एंड द फॉक्स पिक्स इट अप जल्दी चुक लेंदा एंड रनस अवे विद इट किहदे नाल चला जांदा इट किहदे वास्ते यूज़ किया आपां ने इट किहदे लई यूज़ किया आपां ने केक लई क्या बात है ग्रेट शाबाश फूलिंग द क्रो राइट मूर्ख बनाते हुए उन्होंने सो मॉरल इज डोंट फॉल फॉर स्वीट वर्ड्स सो आज दे इंपॉर्टेंट वर्ड किहड़े जिहड़े आपां लिख सकते हैं वन इज स्करिंग सेकंड इज पर्च अनदर इज डिवाइस अ स्कीम ये पूरा ही है डिवाइस अ स्कीम अनदर वर्ड इज फ्लैटर्ड obtain yes obtain so 1 2 3 4 5 वर्ड्स आज दे राइट नोट कर लो वर्ड्स ओनली मोर ओवर ये स्टोरी थोड़ी वीडियो च रिकॉर्ड हो चुकी है ये थानू इवनिंग च मिल ही जाऊगी कल वाली वीडियोस भी मिल जाएगियाँ एंड अज वाली वीडियोस भी जी है मैं अपलोड कर ही दूँगा ठीक है सो फाइन इनफ फॉर द डे इनफ फॉर द स्टोरी नॉट फॉर द डे पिक्चर तो अभी बाकी है पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त ना सो स्टार्ट कर दें आप अज दी क्लास कंटिन्यू कर दें अपनी अज दी क्लास प्रोनाउन नाल प्लीज नोट ना करना नोट ना करना थैंक यू सोनिया नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी को नहीं पता ना ये अच्छी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं पता ना सच्ची नहीं पता ओके आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज डिस्कस कर दें वन बाय वन एक एक कॉन्सैप्ट एंड लेट्स सी अगर नहीं पता था कॉन्सैप्ट नू अंडरस्टैंड करके की अपने च चेंज आता बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पैशली SSC बैंकिंग एग्जाम स्टेट एग्जाम लई राइट रिफ्लैक्सिव मतलब की होंदा है रिफ्लैक्सिव मतलब शब्द बनया रिफ्लैक्ट तो किस तो बनया शब्द किहड़े शब्द तो बनया है रिफ्लैक्ट तो सी
ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਟ ਤੋਂ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਰਾਈਟ। अंडरस्टूड। रिफ्लेक्सिव मतलब क्यों है, समझ आए ना, गुड। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोनाउंस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈਲਫ ਜਾਂ ਸੈਲਫਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ प्रोनाउंस ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੈਲਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸੈਲਫਸ ਲਿਖਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ प्रोनाउन ਹੈਗਾ। ਸੈਲਫ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਦੋਂ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਸੈਲਫਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਪਲੂਰਲ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹਿਮ ਸੈਲਫ, ਰਾਈਟ, ਹਰ ਸੈਲਫ, ਰਾਈਟ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਟ ਸੈਲਫ, योर सेल्फ, सो ऑन। सैल्फ्स लेकिन आप लगाने प्लूरल दे लिए, जिमें कि आवर सेल्फ्स, दैम सेल्फ्स एंड योर सेल्फ्स। हुण योर सेल्फ भी होंगे, अगर मैं कहने की गल करी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्होंने कहना है डू योर वर्क, डू की होंगे करना, डू योर वर्क योर सेल्फ। मैं एक लिए गल करी ना तो मैं की लिखा है वर्ड, की बोले शब्द योर सेल्फ। मैं थोड़ा सारे कहना है वेल सी डू योर वर्क योर सेल्फ्स। और मैं की बोले योर सेल्फ्स, क्यों योर सेल्फ क्यों लिखा, बिकॉज एक नाल गल कर रहे सी। एंड योर सेल्फ्स क्यों लिखा है, बिकॉज सारे नाल गल करी ना जो कि प्लूरल है, राइट। सो सैल्फ एंड सैल्फ्स विच की फर्क होंदा है, ये आपको पता लग गया हुण, यस और नो। कला सैल्फ एंड सैल्फ्स कदों लगाने हैं, सैल्फ्स प्लूरल है, राइट। वी दा आवर हुंदा है, दे दा दैम हुंदा है, यू दा योर भी हुंदा है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हुंदा है। हिम है, ही दा हिम सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, माई भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन दे लई हुंदा है। नाउ हुण मैं वापस फिर आना है भी रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लैक्सिव का मतलब की हुंदा है कमिंग बैक, वापस आना, राइट। उन्होंने आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन कहने हैं, लेकिन क्यों कहने हैं, की कारण है भी इन्होंने शब्दों को आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन कहने हैं, कारण की है। देखो सेंटेंस है आई लाइक माई सेल्फ। जदों सेंटेंस विच सबजैक्ट जिहड़ा हैगा कोई एक्शन करदा, एक्शन मतलब हुंदा है वर्ब, राइट। कोई एक्शन करदा है अते उस एक्शन दा रिजल्ट, राइट, वापस सब्जेक्ट ऊपर ही आंदा है, उस नू रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन कहने हैं। राइट, रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली की होया, सी नोट ना करना यार, वीडियो मिल तो जाओगे बाद च कर नोट कर लेना, राइट। यू नीड अ बुक, मैं तुम बुक लिया देना, तो नोट करना था, समझो यार, समझना जरूरी है, राइट। बुक्स विच है चीज़ा ये सारिया। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन क्यों कहने हैं, बिकॉज अपने शब्द की बोला रिफ्लैक्सिव क्यों होंदा है, वापस आना। लेकिन की चीज़ वापस आती है, वापस की आना है भी रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन विच देखो सैल्फ लगे है तो मतलब रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन विच जिहड़ा सब्जेक्ट है ना वो कोई एक्शन करदा, हुण एक्शन अपना वर्ब किया गया लाइक, सब्जेक्ट ने एक्शन किया लाइक किहनूं किया, माई सेल्फ। माई सेल्फ बेसिकली है कि वो आई खुद ही है,
ਰਾਈਟ। ਵਾਪਿਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲਓ। ਨਾਓ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ he hates himself, right? now subject किया मेरा he, verb किया मेरा hates, he ने hits किता, hit किनू किता himself, himself कौन है, he खुद ही है भी he ने अपने आप नू hit किता, right? subject ने कोई action किता लेकिन वो action जिहड़ा है किहदे उपर result किहदे उपर आया, सब्जेक्ट दे ऊपर ही आया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ आप पहले शब्द ਨੂੰ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने हैं। समझ आया? यस और नो? राइट, गुड। ਇਹ ਆਪਣਾ ऑब्जेक्ट है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ਦੇ ਵਿੱਚ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम ਹੁੰਦੇ ਆ। राइट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नो। राइट, इतों तक समझ आए ना सारा रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन है कि ते इन्हां नूं रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन क्यों कहने हैं, क्लीयर होया आपां नूं। ना हुण कुछ रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन के बारे कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां हैगियां जो आपां नूं आनी चाहिए हैगी। ना पहला पॉइंट ये है रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन कदे भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हिमसेल्फ प्लेज क्रिकेट। नाउ क्रिकेट प्ले मेरा वर्ब हो गया, क्रिकेट मेरा की ऑब्जेक्ट है गया। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट कदे भी नहीं हो सकते, सब्जेक्ट अपना ही होगा। राइट, वन पॉइंट जो है पहला कॉन्सैप्ट। सैकेंड इज जदों आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो अपने आप या बहुत सारे लोग है वर्ल्ड विच जो कहते हैं माई सैल्फ राम, माई सैल्फ श्याम। जदों अपने आप को इंट्रोड्यूस करना कदे भी माई सैल्फ नाल नहीं करना। थोड़े विच कौन कौन करता होंगे वैसे माई सैल्फ? कोई गल नहीं, दस सकते हो, बहुत नहीं करते। गोविंदा भी आई कहते माई सैल्फ गोविंदा, वो भी करते गलत। ओके फाइन, कोई नहीं दसूगा। हम पहला पूछना सी मैं, गलती रह गई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो फिर आंदा आंसर ना। अच्छी गल अगर नहीं करते तो, लेकिन क्यों नहीं करते कारण भी जानना चाहिए, जरूरी आपां नूं। ना माई सैल्फ नाल अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि माई सैल्फ की है अपना रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन आपां कदों यूज़ करते हैं जदों सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है एंड उस एक्शन का रिजल्ट वापस सब्जेक्ट उपर आंदा है। एंड जिहड़ा सेंटेंस हुंदा है माई सैल्फ शाम, जो भी अपना नाम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक्शन है जो आप कर रहे हैं? नहीं है, तो फिर वापस की आऊगा सब्जेक्ट के ऊपर। नहीं मैनू या गल याद आ गई ना कपिल शर्मा शो, तो वापस क्या आएगा सब्जेक्ट के ऊपर? बाबा जी का ठुल्लू। वापस की आऊगा यार, कोई एक्शन तो किया ही नहीं, रिजल्ट किवें वापस आऊगा? इसलिए रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन नाल अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। से यू कैन से माई नेम इज श्याम या I'm Sham, right? My name is Khan. My name is Khan and I'm not a terrorist. My name is Sham. ठीक है ना, मूवी हैगी शाहरुख खान दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? My name is Khan and I'm not a terrorist. So my name क्यों ने आई नहीं लिखा myself? Myself Khan and I'm not a terrorist. Reason ਕੀ है? ਉਹਨੂੰ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किते हुए है। ਉਹਨੇ किते हुए ਉਹਨੂੰ पता है भी myself नाल इंट्रोड्यूस अपने आप को नहीं करना चाहिए। सी परसनल लाइफ के जनरल डिस्कशन के भी अपनी चीज़ां आनिया चाहिए है। इन एग्जाम के पॉइंट आते आते हैं
ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰੇਟ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਅ ਲੋਟ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਜੂਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਖਾਣਾ, रस मलाई, गरम गरम गुलाब जामुन, जो बड़े मोटे नरम नरम गुलाब जामुन, रबड़ी, जलेबी, रबड़ी। ओहो, मैं वापस आना है इससे। सो सेंटेंस इज आई इंजॉयड अ लॉट, भी बहुत इंजॉय किया। आप जने लिखते हैं ना कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, हाँ। सियाम ही कहते करो हाँ जी सर यही लिख देंगे असी चाहे ना लिख दो। ये सेंटेंस अपना गलत है, राइट। गलत क्यों है वो कारण तो आपाने हैं। मैं वापस आऊँगा वाली स्लाइड पे। देखो इंग्लिश लैंग्वेज विच ना कुछ वर्ब्स हैगे है, जिमें कि इंजॉय, एबसेंट, ड्राइव, अप्लाई, रिजाइन, राइट, प्राइड, रिवेंज, avenge, exert, avail, prostrate, etc. दो चार हो होंगे। पहली गल तो मीनिंग देख लो। एंजॉय मीनिंग पता ही, एबसेंट गैर हाजिर होना, ड्राइव कार ड्राइव करना। एक ड्राइव का मतलब होंगे भी मोटिवेट होना। लक्ष्य मूवी देखी, आप कहने दैट मूवी ड्राइव्स मी, नाउ दैट मूवी ड्राइव्स मी मतलब मोटिवेट कर दे मैनू। अप्लाई करना, ऑफ कोर्स किसी चीज़ लिए अप्लाई करना, या जो प्रोसैस चल रहा है, कोई भी प्रोसैस है, चाहे डिपार्टमेंट का प्रोसैस है या जिंदगी की गल करिए, अपने आप नू पूरा प्रोसैस दे विच झोंक देना, दैट इज़ अप्लाई, पूरा 100% दे देना, राइट। रिजाइन होंदा है हालातों के अनुसार अपने आप नू छड्ड देना, रिजाइन करता जी। प्राइड घमंड करना, रिवेंज अवेंज बदला लेना। एग्जर्ट होंदा है एक्सप्रैस करना, टू एक्सप्रैस शो करना, जाहिर करना, राइट, एग्जर्ट। अवेल होंदा है बेनीफिट, बेनीफिट लेना किसी चीज़ का, अपॉर्चुनिटी दा एंड सो ऑन। एंड प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट की होंदा है टू बाउ डाउन। बाउ की होंदा है आप मंदिर गुरुद्वारे जाने हैं एंड वी प्रोस्ट्रेट, लाइक वी बाउ डाउन इन रिस्पैक्ट, रिस्पैक्ट दे विच, आदर दे विच आपां बाउ डाउन। बाउ मतलब होंदा चुकना। पतंग उड़ाने हो, पतंग उड़ाने हो, जो पतंग कट देने हो तो की बोलते हो? आई बो, मतलब की होंदा ओदा? बो आंदी है, पतंग कटती, फिर वो कहता ठीक है तू पतंग मेरी कट्टी है ना बस छड्ड दिंदा वो। ये तो नहीं है गल। आई बो का मतलब की होंदा? आई बो जिहड़ा है ना, जिहड़ी आपां बोलदे हैगे नॉर्मली, वो इंग्लिश की फ्रेज होंदी है आई बो, मतलब पतंग तेरी कटती, तेरा नुकसान हो गया तो मैनू फील होया बिकॉज मैं कट्टी है, मेरे करके होया है, तो मैं ਉਹਦੇ वास्ते मैं माफ़ी मंगदा है। आई बो, सॉरी, सॉरी कहने के बजाय आप कहने आई बो, मतलब पता नहीं, लेकिन फिर भी गुस्से नाल बोलते आई बो भी, आई बो। अरे आई बो का मतलब होंगे सॉरी जनाब, मैं पतंग तेरी कटती तो मैं सॉरी महसूस करदा, पर ना जी आई बो अपने कुछ और ही बना रखा है, राइट, राइट। सो but prostrate means bow down. We must know these are very common things, very common words we use in our daily life. So पता होना चाहिए थोड़े बहुत ideas. Now ये words important क्यों है? ये words important इसलिए है because इन्ना दे नाल अगर object ना दिता होवे, if object is not given, if object is not given, then आपां यूज़ अ रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन। इन्ना दे नाल फिर आपां रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हाँ,
ਰਾਈਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਸਰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਜੋਏ, ਅਪਲਾਈ, resign, exert, avail. So किन्ने बने? 1 2 3 4 5 only 5 words बने जिन्हें विच enjoy तो आंदा ही है, apply भी पता ही होगा, हुन resign भी easy word है, exert and avail बस ये पता रखियो, mind से रखियो। वर्ड सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन सब तो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है जो माइंड से रहने चाहिए वो 5 है। हुन एग्जाम से क्वेश्चन आया इस साल ही, सेंटेंस है आई अप्लाई to the situation. Sentence ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। Now sentence ਹੈ ਸੀ spot the error। ਹੁਣ apply ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ object ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ preposition ਦੇਤੀ to, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, object ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ sentence ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸੋ sentence ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ I apply। ਹੁਣ reflexive ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਸੋ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਬਣੂਗਾ। समझ आया? अंडरस्टूड? क्लियर हुआ है ना? एक और देखो सेंटेंस है, he availed of the task, कुछ भी है चलो, he availed of the task। now the word की है avail ਹੁੰਦਾ benefit ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਹਿਮਸੈਲਫ। ਯੈਸ ਗੁੱਡ, ਹੀ ਅਵੇਲਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਹੀ ਅਵੇਲਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਫ ਦ ਟਾਸਕ। ਯੈਸ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣੂਗਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਪੇਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 2022 2023 ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਬੇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ 2022 2023 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਇਫ an object is given, then don't use a reflexive pronoun। ठीक है ना? ਹੁਣ सेंटेंस है आई इंजॉयड, लेकिन इंजॉय की कितना कुछ लिखा नहीं लिखा। सही सेंटेंस की बनूगा आई इंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट। राइट, लेकिन अगर सेंटेंस लिखा होता आई इंजॉयड द पार्टी। नाउ इले सेंटेंस विच आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, इंजॉयड मेरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द पार्टी मेरा की हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ इंजॉय दे नाल मैनू ऑब्जेक्ट दिता होया है, मैनू रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखूँगा। राइट, इन्हां वर्ब्स दे नाल आपां ने रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन उदों ही लगावांगे इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। अगर ऑब्जेक्ट दिता हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट दिता हुआ है इज गिवन, देन डोंट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? समझ आया ना? ग्रेट। सो इजी कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्सिव शब्द का मतलब की होंदा है? वापिस आना। राइट, सैल्फ लगाने सिंगुलर लई, सैल्फ्स लगाने प्लूरल दे लई। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन कदे भी किसी सेंटेंस का सबजैक्ट आपां नहीं लैके चलते।
एंड रिफ्लैक्सिव का मतलब की होंदा है भी जदों सबजैक्ट ने कोई एक्शन किया एंड उस एक्शन का रिजल्ट वापस सबजैक्ट उपर आंदा है, वो चीज़ वापस आती है रिजल्ट, इसलिए इन्हों रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। राइट, हुण ये कुछ वर्ड्स है, अगर इन्हां दे नाल ऑब्जेक्ट नहीं लग्या फिर रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन लगाना है। राइट, नाउ एक चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ शब्द अगर दिते हो ना, प्रिपेयर, हाइड, कीप, क्वालीफाई, शेव, बेद, एक अदा वर्ड्स हो रहा है, इन्हां दे नाल कभी भी रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता, इन्हां दे नाल कभी भी रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भी हाँ जी किवें तैयारी कर रहे हो, ये आई एम प्रिपेयरिंग माई सैल्फ, सुनिया होना तुसी, यूज भी किया होना कदे, आई एम प्रिपेयरिंग माई सैल्फ। सी प्रिपेयर दे नाल या जिहड़े शब्द मैं बोले, प्रिपेयर सब तो इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज ये बहुत बारी आता है। प्रिपेयर एक कॉमन वर्ड है, इसलिए एग्जामिनर्स भी जोड़े है प्रिपेयर वर्ड ही लिखते हैं, पता नहीं क्यों, बिकॉज प्रिपेयर बहुत ज़्यादा यूज होंगे है वर्ड। लेकिन प्रिपेयर के नाल हाइड होंगे छिपना, कीप होंगे रखना, क्वालीफाई कोई चीज़ क्वालीफाई करता, टेस्ट क्वालीफाई करता, शेव करना, बेद नहाना। राइट, इन्हां वर्ड्स नाल, इन्हां वर्ब्स के नाल रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आऊगा। सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ नहीं आऊगा, आई एम प्रिपेयरिंग, बस सिंपल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ये आऊगा। समझ आया? राइट, डोंट वरी। मैं ना सी अपना जो है ना इंग्लिश का जो अपना जो क्लास है, इस चीज़ से मैं इस बैच विच भी ऑफकोर्स एक चीज़ नवी ऐड की है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ स्टोरी, स्टोरी नाल अपना फर्क आऊगा। जिवें अज की स्टोरी नवा वर्ड की सीखिया, स्करिंग, स्कर की होंदा है एक्सप्लोरिंग या क्लीनिंग। सैकेंड इज़ पर्च, पर्च की होंदा है बैठना। डिवाइस अ स्कीम, डिवाइस अ स्कीम मतलब मेक अ प्लान। एंड देन फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड मतलब पूरा राइट हवा ले लेनी। राइट, इस तरह के वर्ड्स वगैरह अपने करने सीखे है। एंड जो मैं मेन गल कहना चाहना थोड़े वो ये है भी ये भी जो आप एक्सरसाइज हम कंप्लीट होने वाली है अपने प्रोनाउन सारी। एंड फिर मैं इतने एक्सरसाइज लिखूँगा सारे सारे दे सारे कॉन्सैप्ट, चाहे मैंने एक दिन लगे चाहे 2 दिन लगन, 2 दिनों से मैक्सिमम कॉन्सैप्ट सारे रिवाइज भी हो जाएंगे अपने प्रोनाउन से। एंड नाले अपने क्वेश्चनस भी डिस्कस होंगे, वो क्वेश्चन करांगे जेडे 2022-2023 एग्जाम च आए हुए हैं। एंड सारे दे सारे क्वेश्चंस प्रोनाउन से बेस्ड रखे। राइट, चलो हुण आपां रिफ्लैक्सिव तो बाद आने हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस। रिफ्लैक्सिव मतलब की सी, रिफ्लैक्सिव मतलब की है कमिंग बैक। राइट, प्रोनाउन तो पता ही है, ओके फाइन। रिफ्लैक्सिव मतलब होंगे कमिंग बैक। एंड व्हाट इज एम्फैटिक, एम्फैटिक मतलब की होंगे है स्ट्रेसिंग ऑन समथिंग, STH की होंगे है समथिंग। राइट, स्ट्रेसिंग ऑन समथिंग, किसी चीज़ से जोर दे के कहना। जदों आपां कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, कोई शब्द यूज़ करते हैं जो कि सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है, जोर दे के कह रहा है, उस शब्द नूं आपां कहने हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। पंजाबी च भी आपां ने कीती सी, पंजाबी व्याकरण में जदों प्रोनाउन कर रहे सी आपां निजी प्रोनाउन की सी अपना वो निजवाचक प्रोनाउन, वो इंग्लिश में की है एम्फैटिक प्रोनाउन। भी जदों आपां कोई शब्द सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे के कहने हैं उन्होंने आपां कहने हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। जिवें आपां कहने मैं खुद, यार मैं खुद आया सी, राइट, तू मैनू मना किया सी, कहने ना मैं खुद, असी खुद। नाउ व्हाट इज खुद, व्हाट इज दैट खुद इन इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ दैट खुद और पंजाबी लैंग्वेज इन इंग्लिश इज एम्फैटिक प्रोनाउन। जो पंजाबी च हिंदी च आप बोलते हैं असी आप, आप खुद, ये जोड़े शब्द होंगे हैं ये आपां ने सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस वास्ते कहने हैं।
कहने ना आप मैं खुद आया सी, क्यों बोले अपने खुद आया सी, भी कहने आप भी मैं आया सी, असी आप आई सी, एक तो होंगे असी आए सी, एक होंगे असी आप आई सी जी। स्ट्रैस दे रहे हैं आप सबजैक्ट के उपर। सो उन्हें इंग्लिश कहने एम्फैटिक प्रोनाउन। ये भी ऑफकोर्स सैल्फ एंड सैल्व्स आते हैं। हुण इत्थे समझण वाली गल राइट जो इंग्लिश के ज्ञान वाली गल यह है भी सैल्फ एंड सैल्व्स पता लग गया रिफ्लैक्सिव होंगे है। रिफ्लैक्सिव की होंगे है, सबजैक्ट कोई एक्शन करता है, वो एक्शन का रिजल्ट सबजैक्ट उपर ही आता है। सबजैक्ट एंड ऑब्जैक्ट सेम होंगे है, रिफ्लैक्सिव चे सबजैक्ट एंड ऑब्जैक्ट सेम होंगे है। रिफ्लैक्सिव विच भी सैल्फ एंड सैल्व्स यूज़ करते हैं आप, लेकिन ये सबजैक्ट एंड ऑब्जैक्ट सेम नहीं होंगे। जिवें सेंटेंस है आई माई सैल्फ प्लेड क्रिकेट। नाउ वर्ब किया मेरा प्लेड, सब्जेक्ट किया मेरा आई, क्रिकेट किया मेरा ऑब्जेक्ट, प्ले किनू किया क्रिकेट नू किया सी। नाउ एम्फैटिक प्रोनाउन दे विच सबजैक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे, वो अड अड होंगे है। अगर सेंटेंस विच सैल्फ लग्या है तुसी बस ये देखना, और अगर क्वेश्चन ये आ गया भी ये केड़ा प्रोनाउन है तो ऑप्शन विच अगर तुहानू रिफ्लैक्सिव भी दिता होवे एम्फैटिक भी दिता होवे, कन्फ्यूज नहीं होना। ये माइंड आपको हेल्प करोगी भी सैल्फ लग्या कोई गल नहीं है, अगर सबजैक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है तो रिफ्लैक्सिव हो गया, अगर सबजैक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो फिर की हो गया, हो एम्फैटिक हो गया। ये आप यूज़ करते हैं सबजैक्ट के उपर ज़्यादा स्ट्रैस देने लो। आई माई सैल्फ मैं खुद क्रिकेट खेडिया सी, समझ आया? यस और नो? मैं एक सेंटेंस लिखदा तो मैंने दसना तुसी भी रिफ्लैक्सिव है कि एम्फैटिक है, ठीक है? पूछा चाहे तुसी मना करो पूछूंगा तो मैं फिर भी। सेंटेंस है he himself sang a song। सो हिमसेल्फ की है मेरा, रिफ्लैक्सिव या एम्फैटिक? एम्फैटिक है, क्यों? क्यों? या सब्जेक्ट मेरा की है ही, वर्ब मेरा की है सिंग सैंग, सैंग की होगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग सैंग संग, एंड ऑब्जेक्ट की है की गाया किसी सॉन्ग, ऑब्जेक्ट मेरा की हो गया अ सॉन्ग। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम नहीं हैगे, ताई मेरा की हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन। ना एक सेंटेंस है ही slapped himself, सेकंड फॉर्म वर्ब स्लैप्ड। मिल्खा सिंह याद आ गया, मूवी देखी है मिल्खा सिंह? और रुकते जाओ, मूवी तो बोलन दो मैनू ठीक आंसर आता है। मूवी देखी है मिल्खा सिंह? जरूर देखना। होंगे ना वॉशरूम जाता होंगे अपने आप ने स्लैप कर देंगे, याद होगा उस मूवी से ऑफकोर्स ये लाइन में पिक की है, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। नाउ व्हाट इज हिमसेल्फ हियर? इतने हिमसेल्फ की है, हुन बोलो की है? रिफ्लैक्सिव है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया एंड वो एक्शन के ऊपर आया, वापस सब्जेक्ट ऊपर ही आया, बिकॉज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम ही है। ही तो ही हिमसेल्फ बने है ना। हुन समझ आया? हुन ईजी है ना? रिफ्लैक्सिव एम्फैटिक कुछ नहीं है। हुन अगर कोई पूछे थानू भी दसो सैल्फ एंड सैल्व्स की होंगे है, फिर उल्टा तुसी उन्हें पूछो भी रिफ्लैक्सिव वाला दसा कि एम्फैटिक वाला दसा, बंदा हाथ ही जोड़ रहा, नहीं गलत पंगा लेता है राइट। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर दे, जो नॉट ओनली इन आवर डेली लाइफ्स हैल्प्स अस बट ऑल्सो इन जो एग्जाम्स आप दिने हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बहुत हेल्प करता है, राइट। एंड रिफ्लैक्सिव एम्फैटिक काफ़ी हद तक अपने हो चुके हैं, प्रोनाउंस काफ़ी हद तक प्रोनाउंस हो चुके हैं। एक अदा कंसेप्ट हो रह गया होगा, वन आई नो आप फिर मिस कर रहे हैं, मैं करवाई देना। खैर कल अपनी व्याकरण की क्लास हैगी है एंड मैं कल ना कोशिश करूँगा
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕਸ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਸਟ ਰੱਖਣ ਕੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ मतलब पंजाबी व्याकरण करके अब दोबारा फिर ऐसे आवांगे डजन मीन भी तुसी कल एबसेंट हो सर सैटरडे एबसेंट है जी क्योंकि आप देखते रहे हाँ ट्राई करते हैं भी किहड़े क्वेश्चनस है जिहड़े आए है एग्जाम दे विच 4 5 8 10 क्वेश्चनस करांगे प्रैक्टिस किन्ना कुछ प्रोनाउंस आए किहड़े कॉन्सैप्ट सब तो ज़्यादा आते एग्जाम दे विच राइट ठीक है नाउ हुण जो कुछ कॉन्सैप्ट है एक कॉन्सैप्ट हो रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट दैट आई रिमेंबर इज टेक योर लीव फेवर साइट मेंशन सेपरेशन 2-4 वर्ड्स हो रह गए थ्रू एक्सरसाइज करांगे लीव मतलब की होंगे कि जाना फेवर होंगे भी किसी का फेवर मतलब आई नीड आप कहने ना आई नीड योर फेवर भी थोड़ी हेल्प चाहिए है राइट साइट होंगे कि देखना साइट राइट अज ना आप वकैब के भी कर सकते हैं भी साइट साइट से की फर्क है ना मैंशन होंगे किसी का वर्णन करना सैपरेशन होंगे वख होना अड होना ना इन्हां शब्दों तो पहला ना इंग्लिश विच आपां नूं सॉरी पोजैसिव एडजैक्टिव दिते हुंदे हैं की दिते हुंदे हैं पोजैसिव एडजैक्टिव्स माई माइन याद आया माई की हुंदा है पोजैसिव एडजैक्टिव बिकॉज माई फ्रेंड माई स्कूल माई हाउस नाउन लगदा उहदे नाल माइन प्रोनाउन हो गया ठीक है ना इन्हां तो पहला पोजैसिव प्रोनाउन दिते हुंदे हैं जो कि नहीं लगना चाहिए इन्हां तो पहला पोजैसिव प्रोनाउन दिते हुंदे हैं वो आपां नूं नहीं लगाने चाहिए ये आपां नूं प्रैपोजिशन ऑफ दे नाल सही सेंटेंस बनता है बहुत यानी स्टूडेंट कहते हैं वैल कोई मीटिंग होगी आपां कहने हैं वैल आई टेक योर लीव मैं थोड़ी इजाज़त लेना है कहने ना आई टेक योर लीव मैं जा रहा आई टेक योर लीव रॉन्ग सेंटेंस टू मेक गलत सेंटेंस है लीव फेवर साइट मैंशन सैपरेशन इस तो पहला पोजैसिव एडजेक्टिव नहीं लगता फिर की लगूगा आई टेक लीव ऑफ या फ्रॉम यू ऑफ लिखो या फ्रॉम लिखो ऑफ लिखो या फ्रॉम लिखो ये आऊगा राइट आई हेट यूर सैपरेशन आई हेट यूर सैपरेशन मीनस मैनू मतलब तेरे तो वख होना मैनू वाली चीज़ का बहुत नफरत है सो सेंटेंस गलत है या हिंदी गाना याद आया योर सेपरेशन hurts me how sad your separations mean division part away right your separation hurts me तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना गाना सुना होगा था संत बंदे हो जनाब तुसी सतनाम श्री वाहिगुरु राधे 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 कृष्णा चलो फाइन वापस आने नाउ सी योर सेपरेशन तो सेपरेशन एक वर्ड है इससे पहला पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगूगा सो द राइट सेंटेंस बनूगा सेपरेशन फ्रॉम यू या ऑफ यू सेपरेशन ऑफ या फ्रॉम यू हर्ट्स मी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर राइट जबरदस्त कॉन्सैप्ट है सी यू गो थ्रू इंडियन आर्मी जब मैं इतने कैंटोनमेंट जाता हूँ इतने इंडियन आर्मी अपने कैंटोनमेंट है ना इतने हाँ उत्थे थमैया गेट है थमैया गेट पता होगा तुम आर्मी से रह चुके हो उत्थे यूनिट सी यूनिट 14 राइट उत्थे जो मेरे फ्रेंड बने से उत्थे कर्नल तरन पांडे राइट से ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है and of course very very comfortable at English language बहुत comfortable है
ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਪਿਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਨਲ ਆਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡੈਜ਼ਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਕਰਨਲ ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਰਿਵਿਊ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਨਾਓ ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ? ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ। ਸੈਲਫ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸਿੰਗੂਲਰ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਫਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਪਲੂਰਲ। ਵੈਲ ਡਨ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਕਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਆਈ ਇੰਜॉयड ਅ लॉट, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜॉयड अ लॉट, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਈ ਇੰਜॉय ਮਾਈ ਸੈਲਫ। मूवी से भी कहते हैं ना इंजॉय योर सेल्फ, पार्टी चल रहे हैं, हाँ कम ऑन या इंजॉय योर सेल्फ। अब कहते हैं ना इंजॉय योर सेल्फ मतलब फाइन, खुद आनंद लो, इंजॉय योर सेल्फ, राइट। नैक्सट इज ऑफ कोर्स ए वर्ब्स है, ये वो वर्ब्स है जिन्हों के उपर क्वेश्चन आते एग्जाम से, राइट। ये ऑब्जेक्ट नहीं दिता होंगे पेपर से, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਗੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਿਓ, ਬੋ ਆਈਬੋ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੰਫੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਟੂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟ। ਮੈਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ, ਹਾਊ ਸਟੂਪਿਡ ਆਈ ਐਮ। ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜਾਂ ਫਰੋਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਕੈਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਈਟਸ। So yes, tell me the difference between sight and sight. Anybody? Yeah, dekhna, look, see. And sight? Right, area, an area of land. Shabash Aarti, you deserve a toffee. टॉफ़ी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम टॉफ़ी ऑफ कोर्स किसी और को भी टॉफ़ी देनी है ना, देनी है। और नहीं इनता नहीं देनी यार, एवी साइट एंड साइट। नाउ साइट होंगे लुक, जिमें कि आप कहने हैं साइट ऑफ, राइट, द साइट ऑफ हिमालयस, द साइट ऑफ हिमालयस। इच्छा है जान दी, उत्थे रहन दी नहीं कह रहा मैं, जान दी फिर वापिस आ जाना, राइट। द साइट ऑफ हिमालयस, द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिथे काम हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन। So that is the site of construction. So this is the difference. The site होता है एक particular area of land, लेकिन the site is of course दृश्य,
ਵੀ ਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਰਾਈਟ। ਸਾਈਟ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਫਾਈਨਲ ਲਾਸਟ 4 to 5 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬਸ, vocabulary forms of verbs please. Forms of verbs, yes, good. Sirat, word is bear. B-E-A-R, bear. Now see the word is bear. bear मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? जन्म लेना या देना। bear, bore, born। bear सहन करना, टॉलरेट करना। bear, bore, born। yes please everybody। now bear and bore, first two forms ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ verb ਦੀ same ਹੈ, ਬਸ third ਜਿਹੜੀ form of verb ਹੈ right, ਅਗਰ ਉਹ born n ਲੱਗਿਆ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ bear ਜਿਹਦੀ third form n ਦੇ ਬਾਅਦ e ਹੈ born, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ। in life we have borne lots of problems। मैं केड़ा born लिखा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, केड़ा लिखूंगा? ऑप्शन बी मैं लिखा कह रहे हैं इन लाइफ जिंदगी दे विच we dash we have इस तो थर्ड फॉर्म वर्ब लगूगी। we have dash a lot of problems। हम प्रॉब्लम्स की गल हो गई, प्रॉब्लम आप की करते सहन कर दें, तो फिर सहन वास्ते की वर्ड होंगे है थर्ड फॉर्म वर्ब BORNE, born, राइट। अगर एक जिमें आप कहने मदर ने मदर जनरेशन जो है क्रिएट कर दी है, जनरेट कर दी है, राइट। वो की कहते हैं अ मदर डैश अ चाइल्ड, अ मदर बेयर्स अ चाइल्ड, अ मदर बेयर्स, इतने बेयर की हो गया जन्म देने वाला। आई वॉज बोर्न इन XYZ, सो आई वॉज बोर्न, इतने बोर्न की हो गया जन्म लिता सी मैं। समझ आया भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देख के पता लगता है भी ਇਹਲੇ ਜਿਹੜਾ बेयर या बोर्ड लिखिया ਆਪਾਂ ने ਇਹਦਾ मतलब जन्म लेना या देना है कि ਇਹਦਾ मतलब सहन करना है। ठीक है, मैं रफली ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ भी एक वर्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ born, एक ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ वर्ड born। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ लेकिन थर्ड अलग-अलग ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ जन्म लेना या देना, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कोई चीज़ सहन करना। समझ आया हुन, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बिगिन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ शुरू करना, स्टार्ट करना। बिगिन, बिगेन, बिगन। नेक्स्ट ब्रेक, बहुत अच्छा वर्ड है। नाउ ब्रेक दे ना कई वर्ड्स है, एक वर्ड आंदा प्रैपोजिशन आंदी ब्रेक आउट, एक हुंदा है ब्रेक डाउन, एक हुंदा है ब्रेक अप। नाउ ब्रेक आउट आप शब्द यूज़ करते हैं कोई बीमारी लई भी ब्रेक आउट होगी, बैड न्यूज़ लई भी जी बैड न्यूज़ है ब्रेक आउट होगी, पूरे जगह फैल गई है। कोविड हो गया, से ब्रेक आउट ऑफ, राइट, कोविड वास्ते डिजीज़ की शब्द यूज से ब्रेक आउट हो गया, राइट। ब्रेक डाउन होंदा है खराब होना, खराब लेकिन किसी मशीनरी का खराब होना, जिवें बस का खराब होना, राइट, बस का खराब होना। कोई भी आप यूज़ करते हैं वर्ड से बस लई, किसी भी मशीन दे लई, वॉच दे लई, किसी भी मशीनरी का खराब होना ब्रेक डाउन। ब्रेकअप सारे पता होना है, राइट। अनुष्का मैंने आज ब्रेकअप कर लिया, कुछ गाना वगैरह ना, राइट। बट सी ब्रेकअप मतलब सिर्फ वही नहीं होंदा या सिर्फ वही नहीं होंदा। ब्रेकअप मीन टू एंड एन अग्रीमेंट, टू एंड अ कॉन्ट्रैक्ट या टू एंड एन अग्रीमेंट। सो अग्रीमेंट वास्ते भी ब्रेकअप होंदा है।
ਰਾਈਟ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਮੇਜ ਹੈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਸੋਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਸੋਲਿਡ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਇਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 2000 ਐਂਡ 5000 10,000 ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਆਏ ਵੀ ਸਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਤਨ ਟਾਟਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੈਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਲਿਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਸੌਰੀ ਵੀ ਡੂ ਨੋਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ who do not have friendly relationship with my country, with our country। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ। ਕੁਛ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਯਾਰ, ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਫਕੋਰਸ ਕੋਈ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਵਗੈਰਾ सब कुछ बात है। सब तो पहला ऑफकोर्स देश होना चाहिए, देश ही रहना चाहिए। हम तो नहीं रहेंगे, आप तो नहीं रहना ना, लेकिन देश रहना चाहिए अपना यार, इंडिया अपने हमेशा रहना चाहिए। चलो मैं वापस आ रहा, ब्रेक दी गल कर ली सी, ब्रेकआउट अलग मीनिंग है, ब्रेक डाउन अलग है, ब्रेकअप अलग है। नैक्सट वर्ड प्लीज। हाँ जी, BID, बिड, बिड बेड बिडन, राइट। बिड बेड बिडन हुंदा है, बिड बेड बिडन, स्पैलिंग ठीक लिखा मैं? हाँ ठीक है, बिडन विद हो गया। नहीं मैनू माइंड विच बाइडन याद आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ द USA, बिड बेड बिडन। सो ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, टू से गुड बाय, टू से गुड बाय, अलविदा अलविदा, राइट। 4 तक कर दें ना। एक ईडियम जरूर कराना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं, फिर ब्रेक ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। फॉर गुड एक ईडियम है, फॉर गुड, व्हाट इट मीन्स? समझ आ गया, राइट। मैंने पता है तुम ये समझोगे। हाँ बट इट्स अ वन वर्ड, forever, हमेशा लई। He left Delhi for good। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ for good, that means he left Delhi, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। so for good means forever। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ for good ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ for good is an idiom, is a phrase that means forever, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ I promise you, मैं काम करा करूँगा for good। For good means forever। So enough for the day। 5 minutes break for girls। 5 minutes break है for girls। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ